Hello all. So we meet again, and now this meeting shall be more regular. We saw that G20 passed by, and one of the most important decisions or declarations at the G20 was India Middle East Europe corridor, also called as Spice Route. Okay, Spice Route. So you see, here we shall be looking at this spice route, what are the interests of each of the stakeholders, how it has evolved historically in the most comprehensive manner, and this will also be very much important for your 2024 prelims as well as mains examination. Okay, so in case you have got any doubts with respect to this project, because I shall also be comparing this with Belt and Road Initiative, because that was Silk Route, China, Spice Route, India. So this is what we shall be discussing throughout. What is the important each stakeholder's concern, be it USA, be it Saudi, be it Europe, India, we shall be discussing it in complete detail. Any doubts? Write in the comment and you shall be answered. Okay, so let us just look at this corridor first. What is the proposal from India by ship to? It is coming to UAE, that is at Jebel Ali. Then it shall be going across this whole of this in Saudi Arabia by train. Okay, and it is expected that roughly $20 billion will be the cost of this train route, and Saudi Arabia has agreed to fund this. Then this will reach from here to Amman. Where is Amman? That is in Jordan. And from Amman it will go to Haifa in Israel, and from there again by ship to it will go to Piraeus in Greece. And let me tell an interesting fact in front of you. While I was discussing I2U2 and this acquisition of Haifa by Adani Group, if you remember, I had explained them this whole route that this is something that might happen. So always remember, in geopolitics nothing comes out of the blue. अचानक कुछ नहीं होता. अगर आप चीजों को समझते हो तो आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. ठीक है, तो ये हमारा पूरे का पूरा रूट है, और यहाँ पे जॉर्डन, अम्मान से लेकर के हाइफा तक उसके बीच का जो रूट है ना, दैट इज रफली अराउंड 300 किलोमीटर. एंड यूएई हैज शोन इंटरेस्ट कि आई एम विलिंग टू इन्वेस्ट हियर. पर्पस क्या है? लुकिंग एट द opportunities that it will create. And yes, mind you, this is not just a transport corridor. इसके साथ आप देखोगे there will be pipelines for transport of hydrogen, as well as there will be cable for transfer of data, as well as for transfer of electricity. So जब आप बात करते हो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसके पीछे इंडिया का पर्पस क्या है? इंडिया का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, जिसमें कि क्या है कि ये सारे एरियाज को फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया टू साउथ एशिया टू सेंट्रल एशिया टू द गल्फ टू अफ्रीका, connecting all of them through a series of grids so that renewable energy can be transferred from one part to the other. So the purpose is that through grid this whole region will be connected, this whole region will be connected, this whole region will be connected, Southeast Asia will be connected, this whole of Africa will be connected. और जब ये सारे कनेक्ट हो जाएंगे, then simply interconnect all these different
ग्रिड बेस्ड कनेक्टिविटीज, सो दैट पर्पस क्या है, आप देखो यहाँ पे अफ्रीका में सूरज बहुत ज्यादा ब्राइट सनी डेज होते हैं, तो हियर यू विल हैव मोर सोलर एनर्जी। आप यहां क्या देख रहे हो, इन साउथ ईस्ट एशिया देयर इज कोस्टल रीजन, इन द कोस्ट विंड बहुत ज्यादा ब्लो होता है, तो हियर यू शैल हैव विंड एनर्जी। उसके आगे की बात क्या है, जब यहां पे धूप होती है वहां पे शाम हो जाती है, जब वहां पे धूप होती है तो यहाँ पे रात उस समय रहती है, बिकॉज अल्टीमेटली द सन मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर इंटरमिटेंसी है कि कभी है कभी नहीं है, ये जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है OSOWOG, ये उसे भी एड्रेस करेगा। और ये इंडिया का ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकल पावर बल्कि सॉफ्ट पावर एंड इंडियाज लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ, क्योंकि आप इन सारे नेशंस को देखो, दे आर पुअर नेशन, मोस्ट ऑफ देम आर LDCs, least developed countries. So this will also act as a counter to Chinese design through Belt and Road Initiative. ठीक है, तो ये सिर्फ ट्रेड का कॉरिडोर नहीं रहेगा, बल्कि इवन फॉर योर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, बिकॉज इन द फ्यूचर नेचुरली यू विल बी लिसनिंग टू दिस। उसके आगे क्या है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी, तो अब जो यहाँ मोरक्को देख रहे हो, अडानी ग्रुप का एक प्लान था यहाँ पे एक रिन्यूएबल एनर्जी का, एक विंड एनर्जी का प्लान क्रिएट करने का। तो विंड एनर्जी रिन्यूएबल, देन दे विल गेट वाटर फ्रॉम द ओशन, और यहां से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके सेलिंग इट बैक टू यूरोप। सो इस तरीके से दिस विल क्रिएट अ ह्यूज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर ऑल दी स्टेक होल्डर्स, एंड हाउ दैट वी शैल बी लुकिंग subsequently. Before we go to that, let us just look at the historical aspect of why this is now taking place. तो देखो, if you look at it, we can see there are two arrows. One is blue colored, another is red colored. ये जो blue color है ना, this one was silk route in ancient times, और ये जो था ये था spice route. And if you look at it, कहीं ना कहीं spice route was also connected to China, and this silk route, this was also connected to India, यहाँ पे या फिर across the Tibet through all these passes, and ultimately the main target was Europe. और जब स्पाइस रूट वॉज एक्टिव, उस समय फोकस क्या था, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में चलो तो अल्टीमेटली यहां से स्पाइस प्रोड्यूस होता था। अब साउथ ईस्ट एशिया वाज आल्सो प्रोड्यूसर, देन इंडिया वाज आल्सो प्रोड्यूसर। यहां से वो जो स्पाइसेस थे वो अरब ट्रेडर्स लेते थे, और अरब ट्रेडर्स दे यूज्ड टू सेल इट टू द यूरोपियंस, बिकॉज पहले उनका खाना बहुत ही ब्लैंड था, फीका था, स्पाइसेस दैट एडेड सम टेस्ट। तो इफ यू रिमेंबर, वेदर कोलंबस और वास्को ड गामा, उनका फोकस यही था कि ये जो अरब ट्रेडर्स हैं, ये जो बीच का कमीशन खा रहे हैं, अगर हम किसी तरह से इनको बाईपास कर दें तो दे कैन हैव दैट प्रॉफिट। तो कोलंबस इसी रूट के सर्च में निकला, और वो कहां चला गया, अमेरिका। देन वास्को ड गामा, he came across this Cape of Good Hope and ultimately he came to India. तो इसके पीछे स्पाइस रूट का बहुत बड़ा रोल था। और अभी हम इसे स्पाइस रूट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगेन कनेक्टिंग इंडिया विथ यूरोप, इट इज द गल्फ और मिडल ईस्ट और द वेस्ट एशिया। ऑन द अदर हैंड, इफ यू लुक एट चाइना ने दोनों कंपोनेंट को रखा है। आप उसका वन बेल्ट वन रोड या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की अगर आप बात करो, देन ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसका ये जो आप देख रहे हो ना, ये लैंड कंपोनेंट है, वो क्या है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, दैट इज
SREB, और जो इसका मैरीटाइम कंपोनेंट है दैट इज 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। बेल्ट इज फॉर लैंड कंपोनेंट एंड रोड इज फॉर मैरीटाइम कंपोनेंट। और उसके अलावा एक तीसरा कंपोनेंट इसकी जो बात की जाती है दैट इज डिजिटल सिल्क रोड। ठीक है, so there is a very normal and very common thinking that why earlier China and now India, they are bringing up these historical ideas. So always remember, both India and China, they are civilizational states, and both these nations, they were great powers of the past. तो जब भी कोई भी great power which was suppressed, now it is claiming back its glory, it tries to claim back its past importance, it wants to show to the world कि देखो मैं पहले कितना important था, what was my significance, and that is what China was doing, China is doing since coming of Xi Jinping। और अभी जब इंडिया भी उस तरह से ग्रो कर रहा है, तो चाहे आप मौसम की प्रोजेक्ट मौसम की बात कर लो, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर लो, या फिर आप इस स्पाइस रूट की बात कर लो, तो इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू शो इट टू द वर्ल्ड कि इन द पास्ट आई वॉज दैट सेंटर, आई वॉज दैट हब ऑफ ट्रेड, एंड नाउ आई एम इन अ पोजिशन टू क्लेम बैक दैट प्राइमेसी। तो इंडिया और चाइना चूंकि दोनों के दोनों हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं, तो इट वॉज वेरी मच नेचुरल। तो चाइना का जब सिल्क रूट आया तो इंडिया का आ गया स्पाइस रूट। और इसमें देखो ये सारे का सारा वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन, इसका जो डेटा है और बाद में कंपैरिजन होने का, दैट वी शैल बी लुकिंग एट लेटर ऑन। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट स्पाइस रूट व्हाट डज इट शो? इट शोज कि हम सिंस हड़प्पन टाइम्स, उस समय भी हमारा मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड तो होता था, बाद में भी यूरोप के साथ हमारा ट्रेड होता ही था। सो दिस इज लद्दाख, एक्चुअली आई कुड नॉट गेट दैट प्रॉपर मैप, so दिस इज द लद्दाख पोर्शन। तो ये जो आप देख रहे हो दिस इज जीटी रोड और ग्रैंड ट्रंक रोड मेड बाय शेरशाह। इसका पर्पस क्या था? जो ट्रेड है वो सिंपली पूरे का पूरा गैंजेटिक प्लेन को ट्रेस करते हुए फ्रॉम दिल्ली टू लाहौर, लाहौर से होते हुए अप टू काबुल, एंड फ्रॉम काबुल बियॉन्ड सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। सो हिस्टोरिकली इस तरीके से, इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा we saw कि trade despite mercantilist policy, despite its exploitative policies, India's share was significant, which slowly came down. अब when India got independence का के बहुत सारे नुकसान में से सबसे बड़ा नुकसान क्या था कि with the partition of the subcontinent, इंडिया का जो ईस्ट एरिया है और इंडिया का जो वेस्ट एशिया एरिया है, दोनों के दोनों इट गॉट फ्रैगमेंट, एंड इट वाज दिस रीजन विच कनेक्टेड इंडिया टू सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड। इस तरफ तो ठीक है, इस तरफ से मेनली मैरीटाइम ट्रेड था, रीजन बीइंग ये हिली और फॉरेस्ट एरिया। तो हमारा जो डायरेक्ट एक्सेस था, ओवरलैंड एक्सेस, वो कट गया। उसके आगे क्या हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस वी वर मोर इनवर्ड लुक, तो हमारा फोकस इस तरफ असल में रहा नहीं कि ट्रेड को एंड वगैरह वगैरह। बट सिंस लेट 1980s and 1990s, when we liberalized, we started searching for those ancient trade routes, ancient linkages. So when you look at a lookist policy, क्या है lookist policy? So after that economic crisis, dissolution of USSR in a unipolar world with the greater focus on trade, we started searching back that ancient trade linkages,
that was with Southeast Asia, and that became your Lookist policy. Similarly, we tried to do something with Central Asia and beyond. उसके लिए समझौता एक्सप्रेस चला, लाहौर बस डिप्लोमेसी चली, but that did not happen, और this became the biggest millstone for us, जिसके कारण कि हम ओवरलैंड एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड यूरोप नहीं हो पाया, जो हमें ट्रेड का बेनिफिट मिलना था, दैट वी कुड नॉट रियलाइज. So naturally, when you have got some impediments, you try to find some alternatives. तो वो ऑल्टरनेटिव के रूप में हमने क्या देखा? वो ऑल्टरनेटिव के रूप में वी लुक्ड एट ईरान. हमारा फोकस था कि अगर पाकिस्तान दिक्कत कर रहा है, तो अगर हम पाकिस्तान को समहाउ क्रॉस कर ले, तो थ्रू ईरान वी कैन ऑलवेज रीच आउट टू सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप, ये पूरे का पूरा रीजन. तो इसीलिए जब आप INSTC को देख रहे हो, या फिर आप चाबहार को देख रहे हो, आप अशगाबाट एग्रीमेंट को देख रहे हो, then what was the purpose? The purpose was that the geographical limitation put by Pakistan, put by the partition of the subcontinent, somehow we have to bypass this impediment and we have to ensure our trade routes to the region beyond South Asia, that is Central Asia और बाकी ईस्टर्न यूरोप एंड बाकी सारा रीजन. लेकिन हमने कोशिश तो की, दिक्कत क्या आया? जो ईरान है, ईरान का एक कांस्टेंट टेंशन रहता है USA एंड वेस्ट के साथ. नतीजा क्या हुआ? चाहे फरजाद गैस फील्ड की बात हो या फिर चाबहार की बात हो, when we tried to invest, इन्वेस्टमेंट में दिक्कत, सैंक्शंस का डर. तो जिस पेस के साथ हम ग्रो कर रहे हैं, जिस पेस के साथ हम अपने ट्रेड लिंकेजेस को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, अल्टीमेटली वी कुड नॉट. और उसी अल्टरनेट रूट की सर्च में आप देख रहे हो चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर, बिकॉज जो भी आपके ज्योग्राफिकल इंपेडिमेंट्स होते हैं, अल्टीमेटली यू वांट टू फाइंड सम अल्टरनेट रूट. Even if you look at China, China has created rail routes reaching up to Europe, passing whole of Central Asia, क्योंकि ultimately trade तो करना है ना. Unless you do trade, you cannot ensure your growth, you cannot ensure your prosperity. तो जब हमने ईरान के थ्रू भी करने की कोशिश की, तो ये आ गया इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा इम्पेडिमेंट. तो देन अगेन हमारे पास ऑप्शन था कि एक तो ईरान के चक्कर में बैठे रहो कि किसी दिन दोबारा से JCPOA साइन हो जाएगा, ईरान और USA के बीच में समहाउ टेंशंस खत्म होंगे और हम दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट दिस इज अनसर्टन, क्योंकि आफ्टर साइनिंग ऑफ JCPOA सैंक्शंस हट गए थे, ट्रंप आया, दोबारा सैंक्शंस लग गए. एंड अनसर्टेनिटी इज नेवर लाइक्ड इन ट्रेड. ठीक है. और उसके बाद अब थोड़ा सा बस एक और चीज याद रखना, दैट इज when we are talking about another route, that is स्वेज कनाल. तो देखो स्वेज कनाल के केस में क्या दिक्कत है? एक तो दिस इज अ चोक पॉइंट, and if you remember the ship that got stuck, तो अगर कोई शिप स्टक हो जाता है, उसके कारण योर ट्रेड गेट्स हिंडर्ड. उसके आगे की दिक्कत क्या है? क्रॉसिंग थ्रू स्वेज कनाल. उसके लिए क्या है कि वहां पे चाहे आप टो बोट्स की बात करो या स्पेसिफिक पायलट्स की बात करो, उनकी जरूरत पड़ती है. दैट इज व्हाई इट बिकम्स मच मोर कॉस्टली टू ट्रेस थ्रू स्वेज कनाल. और स्वेज कनाल के साथ और एक बात क्या है? इफ यू रिमेंबर, जिबूती पर हालांकि जापान भी है, बट एट द सेम टाइम चाइना भी है. सो इफ यू आर ट्राइंग टू ब्लॉक चाइना एट मलाक्का, देन चाइना कैन क्रिएट चैलेंजेस फॉर यू एट नियर जिबूती.
if you remain dependent through this Suez Canal route. So strategically also there was a need for us कि कोई दूसरा alternate route सर्च किया जाए. तो उस alternate route की सर्च में हमने क्या देखा, एक एक करके जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ इवेंट्स वन आफ्टर द अदर, फिर आप अपने आप सारी चीजों को समझ जाओगे, सब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा. सबसे पहले क्या आया था, नॉट दिस कलर, दिस कलर. सबसे पहले आया था अब्राहम अकॉर्ड. अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू क्या हुआ, यूएई आया था, इजराइल आया था. तो somehow USA was trying to mainstream Israel so that कि कम से कम उसे हमेशा प्रेजेंट रहने की USA को जरूरत ना पड़े. जब ये हो गया उसके बाद फिर आपको क्या आया था, then it was I2U2. I2U2 में again Israel is there, USA is there, UAE is there and India is there. उसके बाद क्या हुआ, then you got, just a sec, मुझे एक एक करके देखने दीजिए. सबसे पहले क्या आया, अब्राहम अकॉर्ड. अब्राहम अकॉर्ड के बाद क्या आया, I2U2. I2U2 के बाद क्या आया, इंडिया गॉट हाइफा पोर्ट. तो व्हेन यू लुक एट दिस, जैसे अमित शाह कहते हैं आप क्रोनोलॉजी को समझिए. सो व्हाट डू यू सी हियर, you see here that somehow USA is trying to bring in Israel and somehow trying to reduce its footprint from the region, क्योंकि USA का जो फोकस था that is energy from the Gulf. USA as the maintainer of the order in the region, USA started looking inwards. तो उसके कारण somehow उसे जरूरत थी. उसके बाद आप क्या देख रहे हो, that role of India in West Asia वो continuously increase हो रहा था और India itself was very much interested in increasing its own stake. और हाँ, ये जो वेस्ट एशिया है और मिडल ईस्ट है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है. बिकॉज वाई डू वी, हम इसे क्यों कहते हैं वेस्ट एशिया, बिकॉज दिस इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया. लेकिन वेन वेस्टर्न नेशंस दे आर टॉकिंग, उनके लिए तो सब कुछ ईस्ट में है ना. जापान भी ईस्ट, इंडिया भी ईस्ट और अरब नेशंस भी ईस्ट. तो उसी ईस्ट में एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी को उन्होंने फोकस करने के लिए वो ईस्ट नहीं उसे मिडिल ईस्ट बना लिया. सो अल्टीमेटली जो हमारे लिए वेस्ट एशिया है वो यूरोपियन नेशंस के लिए, अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट है. तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. तो इंडिया का स्टेक कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था और यूएसए समहाउ इजराइल को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा था और इसके थ्रू देखो वो इंडिया को भी इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा था. बिकॉज यूएसए हैड दिस डाउट कि इफ यूएसए स्टेप्स बैक फ्रॉम वेस्ट एशिया, अल्टीमेटली चाइना इज सिटिंग. और चाइना ने अभी सऊदी और ईरान का डील करवाया है. उसके आगे जाकर अगर आप चाइना को देखो तो उसने अपना नया वाला एम्बेसडर भेजा अफगानिस्तान में अंडर द तालिबान रेजिम. तो चाइना इज ऑल्सो कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू एक्सपेंड इट्स फुटप्रिंट. तो यूएसए वांटेड सम रिलायबल पार्टनर whom the West Asian nations could also trust, and that partner became India. और इंडिया की जरूरत क्या थी, इंडिया की जरूरत थी कि somehow it should be able to reach Europe. पाकिस्तान जाने नहीं दे रहा है, ईरान के साथ दिक्कत ही पड़ रही है. तो तीसरा रास्ता कौन सा बचता है, तीसरा रास्ता बचता है थ्रू गल्फ नेशंस, थ्रू अरेबियन पेनिनसुला. और वही आपका ये कॉरिडोर बन गया, ठीक है. तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है. और देखो इसका एक सिग्निफिकेंस क्या है, ये कहां से चल रहा है. इट स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया, राइट.
ये पूरा का पूरा रीजन सही है, देन इट रीचेज यूएई, फ्रॉम यूएई इट रीचेज सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया के बाद इट रीचेज जॉर्डन, और जॉर्डन के बाद इट रीचेज इजराइल, और उसके बाद फिर ये सीधे का सीधा, ये देखो या तो ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, आई मीन वेर एवर इट वॉन्ट्स टू गो। सो ये जो आप रीजन देख रहे हो लीबिया एंड ऑल, ये अनस्टेबल है। ये रीजन आप जो देख रहे हो दिस इज इराक, दिस इज ऑल्सो अनस्टेबल। सो दिस रूट पासेस थ्रू दिस आर्क ऑफ स्टेबिलिटी विद इन वेस्ट एशिया। तो इसके सक्सेसफुल होने के, इसके इंप्लीमेंटेशन होने के चांसेस ज्यादा है। दैट इज अनदर पॉजिटिव थिंग। एंड जस्ट फॉर गिविंग यू सम डेटा, इसके पीछे का फायदा क्या होगा? अगर आप इंडिया से यूरोप के ट्रेड की बात करो ना, तो टाइम विल बी 40% लेसर एंड कॉस्ट विल बी 30% लेसर। तो जब आपका टाइम कम लग रहा है, जब आपका कॉस्ट कम लग रहा है, अल्टीमेटली योर कॉम्पिटिटिवनेस विल इंक्रीज। So when you are more competitive, when your businesses are more competitive, you can increase your export। तो इससे क्या होगा? इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है? So this is the whole। और अभी नहीं, इनफैक्ट लास्ट ईयर इंडिया के एनएसए अजित डोभाल और यूएसए के एनएसए जेक सुलिवन, दे हैड प्रपोज्ड दिस आइडिया। उनके बीच में इस तरह की बात हुई थी, एंड अल्टीमेटली ऑल अग्रीड। And in the next slide we shall be looking कि why all these nations they are so much focused। तो आप देखो इसमें किसका क्या इंटरेस्ट है, हम बस वही डिस्कस करेंगे। इंडिया का इंटरेस्ट क्या क्या है? सबसे पहले एक क्या था? रीचिंग यूरोप। सेकंड इज बाईपासिंग स्वेज कनाल। तीसरा क्या है? चीपर एंड फास्टर ट्रेड। ये देखो, ये तीन तो आपके इकोनॉमिक हो गए। इकोनॉमिक के बाद जियोपॉलिटिकल क्या क्या है? जियोपॉलिटिकल है डीपर एंगेजमेंट विथ गल्फ नेशंस। बिकॉज इफ यू रिमेंबर, गल्फ नेशंस के साथ पहले हमारा बायर सेलर का रिलेशन था, उसके बाद अभी ज्वाइंट डेवलपमेंट की बात हो रही है। महाराष्ट्र में रत्नगिरी के पास देयर वाज अ प्रोजेक्ट रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ बिगेस्ट रिफाइनरी इन द वर्ल्ड। ठीक है? और गल्फ का क्या क्या फैक्टर है वो हम गल्फ में यानी या सऊदी अरेबिया में देख लेंगे। ठीक है? और उसके अलावा क्या है? इंडिया कैन बी सीन एज अ कैपेबल पार्टनर। ठीक है? तो ये इंडिया के स्टेक्स हैं। उसके अलावा क्या है? इंडिया हैज गॉट दिस एक्सपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू रोड बिल्डिंग, विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्रेन रेलवे ट्रैक वगैरह। तो इंडिया के बिजनेसेस के लिए देयर आर मोर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, then this can be also used for interconnecting grids through under the project of one sun one world one grid। ये सारे इंडिया के इंटरेस्ट्स हैं। राइट इट डाउन, क्योंकि हो सकता है आपको याद ना रहे। अब आगे आता हूं सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट, एंड इट्स नॉट जस्ट सऊदी अरेबिया बल्कि इट्स ऑल्सो यूएई। सऊदी अरेबिया का क्या है? सऊदी अरेबिया क्या देख रहा है? डाइवर्सिफाई पार्टनर्स। It is looking beyond USA, that is why China became a mediator in its mediation with Iran। सेकंड चीज क्या है? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। बिकॉज इफ यू रिमेंबर, सऊदी अरेबिया का एक है सऊदी विजन 2030। बिकॉज गल्फ नेशंस ऑल्सो नो कि धीरे धीरे वर्ल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम फॉसिल। तो जब आप फॉसिल से अवे जा रहे हो, यू नीड टू गो फॉर सम अदर सोर्सेज ऑफ इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये पूरे का पूरा
जो कॉरिडोर बनेगा, कॉरिडोर के अराउंड जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आएगी, देयर विल बी बिजनेसेस, देयर विल बी वेयर हाउसेस, जो आपका ट्रांजिट फी आप लोगे, तो दिस विल अगेन क्रिएट मोर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तीसरा फैक्टर क्या है? इंडिया एज ए रिलायबल फ्यूचर मार्केट, because you see USA to a certain extent it has become self sufficient in case of energy. Biggest its partner is China. China is slowing down and China has also increased its energy trade with Russia. तो बच कौन गया? India. So it wants कि there should be some sort of stable, reliable business linkages with the nation that is going to be the third largest, second largest economy, that is India. उसके अलावा क्या है कि इसके थ्रू बाकी सारे का सारा डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी, then this will bring in greater stability to the region. When we are talking about developmental peace, ठीक है, तो ये सऊदी अरेबिया का फोकस है। नाउ लेट अस लुक एट यूरोप. व्हाई इज यूरोप सो मच फोकस्ड? अगेन यूरोप ऑल्सो वांट्स टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन चाइना. हालांकि यूरोप इज लुकिंग एट चाइना एज ए प्रेफर्ड पार्टनर. आपने देखा था कि जर्मनी के चांसलर ही हैड आल्सो गॉन, इमैनुअल मैक्रोन द फ्रेंच प्रेसिडेंट ही हैड आल्सो गॉन टू चाइना, बट अल्टीमेटली दे आर आल्सो अवेयर अबाउट चाइना वेपनाइजिंग ट्रेड. तो अभी आपने देखा BTIA इंडिया के साथ यूरोप का जो नेगोशिएशन है, इट हैज बीन रीस्टार्ट. तो इट वांट्स टू डीपर इकोनॉमिक एंगेजमेंट विथ इंडिया. ठीक है, उसके आगे का क्या है? अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट. थर्ड इज ऑल्टरनेट टू चाइना एंड गिविंग alternate vision or project to BRI. ठीक है, सो ये यूरोप का इंटरेस्ट है. उसे चाइना से दूर हटना है, इंडिया के नजदीक जाना है. उसके अलावा जो आपके ट्रेड रूट्स हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, स्टेबिलिटी इन द रीजन है, जॉब क्रिएशन होगा तो नेचुरली जो माइग्रेशन का जो प्रेशर है दैट विल गेट रिड्यूस्ड. ऑल दीज फैक्टर्स आर देयर. नेक्स्ट कम्स यूएसए. तो देखो यूएसए का काफी एक्सपेंसिव आइडिया है. सबसे पहले यूएसए का फोकस क्या है? इट वांट्स टू स्ट्रेंथन इट्स पार्टनर्स इन द रीजन. क्योंकि यूएसए इस प्रोजेक्ट को बोल रहा है अंडर PGII पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट. सेकंड क्या है? इट इज ब्रिंगिंग इन इजराइल. तो इफ यू आर ब्रिंगिंग इन इजराइल, तो अल्टीमेटली आप इजराइल को रीजन के ट्रेड के साथ लिंक कर रहे हो, एंड व्हेन ट्रेड कंटिन्यूज नेचुरली द स्कोप फॉर टेंशन दैट गेट्स रिड्यूस्ड. देन थर्ड क्या है? बैलेंसिंग और limiting China in the region, and then it is alternate to BRI and re-establishing its leadership credential. And that is why when Biden was speaking about this project, he termed this as a game changer. ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं. हर किसी का एक स्टेक है, हर किसी का एक रीजन है व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग. बट लेट अस आल्सो हैव अ कंपैरिजन विथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. तो देखो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सबसे पहले क्या है? वो 2013 में आया था, वो 10 साल पुराना है. ये बिल्कुल न्यू आइडिया है, स्टिल इन कंसेप्शन फेज. हाउएवर इट हैज बीन सेड दैट विद इन 60 days देयर शैल बी अ मीटिंग. अगली दिक्कत क्या है?
वहां पे चाइना इज एंगेजिंग 1-to-1, तो फंड का इशू नहीं, इंप्लीमेंटेशन का इशू नहीं। यहां पे क्या है, देयर आर मल्टीपल पार्टनर्स, देयर आर मल्टीपल नेशंस इन्वॉल्व। So what will be the funding modality, how much, who will fund, what will be the profit percentage, what will be the sharing. There can be a case जहां पे कि दो अलग अलग नेशंस के इंटरेस्ट अलग अलग क्लैश कर रहे हैं, तो वही लिखा हुआ है मल्टीपल सोर्सेज मल्टीपल इंटरेस्ट, दैट इज वाई स्कोप फॉर क्लैश। अगली दिक्कत क्या है, यहां पे देयर कैन बी चैलेंज विथ रिस्पेक्ट टू लैंड एक्विजिशन प्लानिंग फंडिंग, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीआरआई के साथ जो बहुत बड़ी दिक्कत है, इट लैक्स ट्रांसपेरेंसी। वाइल यहां पे क्या है, व्हेन देयर आर मल्टीपल प्लेयर्स नेचुरली देयर विल बी ट्रांसपेरेंसी। पॉजिटिव इसका क्या, बीआरआई के केस में इफ यू लुक एट सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स, वहां पे वो देखा जा रहा है लाइक अ डेट ट्रैप, वेदर यू टॉक अबाउट श्रीलंका और you talk about even Kenya, Zimbabwe, then you talk about Pakistan. लेकिन here the challenge will not be such, because जो बाकी सारे nations हैं, they are well off nations and they are willing to invest because they know that it can be profitable in। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का कंपैरिजन है। और हाँ, हालांकि आज एक दूसरा न्यूज आया है, इसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करूं। चलो फर्स्ट न्यूज इसके थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ, आवर डियर फ्रेंड टर्की, आई एम टॉकिंग सरकास्टिकली, टर्की हैज शोन ऑपोजिशन, और टर्की हैज सेड दैट देयर कैन बी नो कॉरिडोर दैट बाईपासेस टर्की। उसने क्या कहा है कि आपका ये जो ट्रेड रूट है वो यहां से उठ करके आना चाहिए इराक, बगदाद में, बगदाद से इट शुड गो टू टर्की, बगदाद इधर नहीं, बगदाद से इट शुड गो थ्रू टर्की, और यहां से लेकर इट शुड रीच अप टू यूरोप। एंड टर्की आई थिंक मोर देन 10 to 12 बिलियन डॉलर्स टर्की इज विलिंग टू इन्वेस्ट। हालांकि टर्की की इकोनॉमिक कंडीशन ऑलरेडी बहुत खराब है, बट एक दिक्कत यह है ना कि यूएई इसे भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यूएई ऐसी जगह पे बैठा हुआ है दैट इट कैन हैव दैट स्वीट पोजीशन। So when you look at UAE is part of Belt and Road Initiative. UAE is part of this spice route, and UAE is also party to this, the one proposed by Turkey. So this is the very recent news. So I hope तो सपोज इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है तो लास्ट में वही है कंक्लूजन, देयर शुड बी कोऑपरेशन, देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन एंड देयर शुड बी प्रॉम्प्ट डिलीवरी, क्योंकि इंडिया की जो दिक्कत है ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवरी, दैट नीड्स टू बी टैकल्ड। और एक चैलेंज क्या आ सकता है, दैट इज इजराइल सऊदी टेंशंस, बिकॉज सऊदी स्टिल डज नॉट रिकॉग्नाइज इजराइल। ओके, so these are some of the challenges. Suggestions would be the same, that you should cooperate, coordinate, nations must coordinate and go for a win-win partnership. Okay, so that was all with respect to this new initiative, that is India Middle East Europe corridor. Any doubts related to this you can always comment, and in the next video I shall be coming up with a new topic explaining like this in complete detail, even from a PSIR perspective. Okay, that's all for today. Thank you very much.